Hello, my dear students. Once again, I, Praveen Dubey, welcome you all to RBS classes, the Pariksha Guru. And today I have brought for you a very important topic, especially for TGT, PGT, LT, NET, JRF, and higher education. And the topic is modern age and its literature. But before going through this topic, I would like to request to all of you that watch, like, subscribe, and share. And don't forget pressing the bell icon in order to get all the notifications. Once again, I am here with a very important topic, but you must know that these are not actually the topics, but these are the fragments. ये fragments हैं that you are getting as trailer, जिनको आप ट्रेलर के रूप में पा रहे हैं, and the whole topic cannot be covered in one video or in 45 minutes or 50 minutes or 60 minutes. You know that for TGT especially there are very few topics, and PGT you have a lot of topics, but if you see the topics of TGT you find not more than 20-30 topics. It simply means that if I will be capable of covering these topics fast or faster or in the fastest way, simply the whole course will be covered in 30 classes. That is not possible. Simply what I want to tell you that all these topics are big topics and these topics cannot be covered in one class. So simply these are the trailers. These are just to show you that what can you find if you go through the whole topics, and for that what you have to do, you have to take admission, and in order to take admission you must go through the numbers given on the board and you will have the procedures. The fee is very less and you can join these in these topics through this fee, and very soon the fee is going to be increased and that would be problem for you. So enjoy these topics, but don't forget taking admission for the whole topics, and these all the topics must not be forgotten to be taken. What you must think that topics are not important, the facts are important. As I am telling you that today I am going to discuss modern age and its literature in Europe, especially English literature. So what do you think that can I cover this whole topic today in this video? Not possible. Only the philosophy, only the concept, only the ingredients, only these things can be covered. Means you will have a superficial idea about modern age and its literature. So I shift to modern age and its literature. Today's topic is modern age. Modern age and its literature. So modern age and its literature. Modern age is supposed to be the most confused age, especially for literature. Modern age is supposed to be the most versatile age, especially for literature. The very first thing that when modern age is supposed to begin, simply modern age is supposed to begin just after the Victorian period ended. And when Victorian period ended with the death of Queen Victoria, who reigned 63 years and 216 days.
Queen Victoria died in 1901. So the things that you must keep inside your brains, that this period is 1901. लेकिन बाद वाले पीरियड के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कब तक ये चला, तो उसके लिए भी कंट्रोवर्सी है. समटाइम्स इट इज सेड दैट 1901 टू 1931 इतना तक चला. कुछ लोगों का मानना है कि 1931 तक ये चला. क्यों चला? What are their logics? That in 1931 Albert Einstein's theory of relativity influenced the whole literature. This is Einstein's theory of relativity influenced the whole literature. ठीक है. आइंस्टाइन की जो थियरी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इट इन्फ्लुएंस द होल लिटरेचर. एंड व्हाट वाज द थियरी ऑफ रिलेटिविटी? दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट. कुछ भी परम नहीं है, पक्का नहीं है. ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव. इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब सापेक्ष हैं. यह सापेक्षता का सिद्धांत है. किसका? आइंस्टाइन का. उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ भी 100% नहीं है. कैसे उन्होंने कहा? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं कहूं कि फला व्यक्ति बहुत गरीब है क्योंकि वो केवल 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है. तो व्हाट इट मीन्स? दिस इज अ रिलेटिव थिंग. पॉवर्टी इज अ रिलेटिव थिंग. पॉवर्टी एक सापेक्ष चीज है. 10,000 वाला जो 10,000 सैलरी पाता है पर मंथ, वह व्यक्ति गरीब है उस व्यक्ति के लिए जो 12,000 पाता है या जो 1,00,000 पाता है. लेकिन उसी व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति अमीर है उसी व्यक्ति के लिए जो 11,000 पाता है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति गरीब है जो 9,000 पाता है. क्यों? क्योंकि 9,000 वाले के लिए 10,000 वाला बहुत अमीर है. सापेक्षता का सिद्धांत है. दिस इज द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, नथिंग एल्स. किसी व्यक्ति को आप गरीब नहीं कह सकते हैं. आपको बताना पड़ेगा किससे गरीब है, कंपैरिजन करना पड़ेगा. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंपैरेटिव. कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी अर्थ निकलेगा. मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी. जब तक हम दूसरे का नाम नहीं लेंगे, किससे तेज हूं, किससे कमजोर हूं, तब तक पक्का नहीं हो सकता. तो 1931 में आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द होल लिटरेचर कि किसी को भी पक्का मत कहिए, इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है, सब कुछ कंपैरेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है. और इस तरीके से जो परफेक्ट व्याख्याएं दी जा रही थी कि कभी यह कहता है, वहां एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया, प्रोबेबली द पोएट सेज, परहैप्स द पोएट सेज, द पोएट सीम्स टू से, एंड दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर. Not only English literature, but the whole world came to be directed in another way. So कुछ लोगों का मानना है 1931 तक ही हम इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी को माने, तो ये गलत है. एक और चीज जानिए, कारण और बनता है कि 1930s के दशक में, यहां देखिए, during the decade of
1930s 1930s के दशक में an economic depression took place in Europe. Economic depression. Took place in Europe. एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी यूरोप में, जब पैसे की कीमत बिल्कुल गिर गई थी। लोगों के पास इतना पैसा हो गया था कि लोग उसे जलाकर अलाव तापते थे, गर्मी लेते थे नोटों को जला करके। तो एक कारण तो यह है कि 1931 1930 तक मॉडर्न एज का अंत मान लिया जाता है, और यह मान लिया जाता है कि इसके बाद पोस्ट मॉडर्न एरा शुरू होता है। पोस्ट मॉडर्न एरा, उत्तर आधुनिक काल, ठीक है, मतलब वो और आगे चला जाता है। एक दूसरा समय माना जाता है, देखिए यहां 1945। कुछ लोगों का मानना है कि मॉडर्न एज 1945 तक एग्जिस्ट करता है। क्यों? यहां खत्म होने का क्या कारण है, यहां तक क्यों लोग मानते हैं? बिकॉज इन 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड। यहां देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड। कारण है कि यहां वर्ल्ड वॉर सेकेंड का अंत हुआ, एंड दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड created a tension, frustration into the atmosphere, and the world was not as it was before. जैसा ये पहले था वैसा नहीं था, because pessimism was prevailing in the atmosphere. पूरे के पूरे वातावरण में, वायुमंडल में पूरी तरीके से निराशा फैल गई थी। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूरोप का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत न हुई हो, इतना खतरनाक था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड became the symbol of the failure of civilization. वर्ल्ड वॉर सेकेंड सभ्यता के असफलता का प्रतीक बन गया। सभ्यता फेल हो गई। जो सोसाइटी थी, जो सिविलाइजेशन था, जो कल्चर था, इट केम टू बी डिस्ट्रॉयड फुल्ली। और जो ये सारे प्रभाव थे, ऑल दीज इंपैक्ट्स कुड बी सीन ऑन लिटरेचर आफ्टर 1945. And that is why it is said that literature after 1945, after the end of the World War II, became the literature of postmodern era, because that was not a common literature, that was not the literature in pattern, that was not the literature in tradition, that was different kind of literature, and this literature was dealing with the dissatisfaction of the audience. Audience के असंतुष्टि से डील करने लगा कि वह लिटरेचर ज्यादा अच्छा माना जाएगा जिससे जनता असंतुष्ट होगी। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड हैड गॉन अपसाइड डाउन, क्योंकि दुनिया उल्टी हो गई थी, और दुनिया को अगर आपको सीधा देखना था तो उल्टा खड़ा होना पड़ता। तो 1945 का भी अपना लॉजिक है, लेकिन एक लॉजिक और दिया जाता है, दैट इज 1969। कुछ लोगों का मानना है कि मॉडर्न एज लास्ट टिल 1969, एंड आफ्टर 1969 बिगैन पोस्ट मॉडर्न एरा। एंड व्हाट वर देयर लॉजिक्स? उनके लॉजिक्स क्या थे? यहां देखिए लॉजिक्स। 21 जुलाई 21 जुलाई 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर कोई व्यक्ति पहुंचा, एंड दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप डाउन ऑन द मून। और जो एक लोगों के दिमाग में था कि चंद्रमा ये है, चंद्रमा वो है, ऑल दीज थिंग्स केम टू बी डिलीटेड फ्रॉम देयर माइंड। सारी चीजें बदल गई और एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। So what you have to keep inside your brains that when modern age began, this is very clear that after the death of Queen Victoria, modern age began. But till when it lasted? Simply you have three concepts, that it lasted till 1931 or 1930s,
and it lasted till 1945 and it lasted till 1969, and these are the logics. 1930s economic depression came, 1931 because of the Einstein's concept of theory of relativity, and 1945 the end of World War II, and 1969 that Neil Armstrong stepped down on the moon for the first time. So these are the concepts. ये concepts हैं इसके समय का, जो आपको मानना हो मान लीजिए। अगर आप मुझसे आप पूछेंगे मानने को तो मैं आपको इसको सलाह दूंगा, ठीक है। और जहां आप मॉडर्न एज का अंत मानेंगे वहीं से आपको पोस्ट मॉडर्न एज की शुरुआत माननी पड़ेगी। पोस्ट मॉडर्न एज कब से, तब से लेके अब तक, जब तक हम देख रहे हैं। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, भूलने नहीं चाहिए। नाउ देखिए, अगेन एंड अगेन ऑलमोस्ट इन एवरी वीडियो आई टेल यू दैट लिटरेचर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बैकग्राउंड एंड इट्स अ सोसाइटी। समाज और अपने बैकग्राउंड का पार्ट होता है, प्रोडक्ट होता है लिटरेचर। तो जैसा आपका समाज होगा वैसा ही लिटरेचर आप लिखेंगे। जैसे अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में आप फूल देखते हैं, हरे भरे बगीचे देखते हैं, चारों तरफ खूबसूरती फैली हुई है देखते हैं, लोगों को खुश देखते हैं, खुशियों का माहौल देखते हैं। एंड व्हेन यू कम बैक टू योर डेस्टिनेशन, अपने मंजिल पर जब वापस आते हैं, एंड इफ यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, डेफिनेटली यू विल राइट द थिंग्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। आप वही लिखेंगे जिनसे होकर आप आए हैं। तो योर लिटरेचर विल बी हैप्पी लिटरेचर। it will be full of optimism. It will be full of brighter side of the things. But आप घर से बाहर निकलते हैं और कहीं देखते हैं कि कोई मर्डर हुआ है, कहीं देखते हैं कि कोई मरा पड़ा है, किसी को मार के फेंक दिया गया है मान लीजिए, ठीक है, सब कुछ हुआ है। What will happen to you? कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, then what will you do? You will start writing the things that you have gone through. Your literature will be pessimistic. Your literature will be full of depression, frustration, alienation, isolation, fragmentation, atomization and mechanization. All sorts of things you'll find in your literature because you have gone through all these things. क्योंकि यही सारी चीजें आपने देखा है, और यही सारी चीजें अगर आपने देखा है तो यही सारी चीज आप लिखेंगे। जैसे समाज में आप रहते हैं आप वही बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, you people are studying for TGT, PGT, LT, NET, JRF and higher education. मान लीजिए आप किसी बेसिक के टीचर के साथ रहते हैं, जो प्राइमरी में टीचर है, जूनियर हाई स्कूल में टीचर है। He will never think like you think. जैसे आप सोचते हैं वैसे वो कभी नहीं सोचेगा। उसकी सोच आपसे बिल्कुल भिन्न होगी, बिकॉज वो उस मेंटालिटी, उस हायर मेंटालिटी से डील नहीं करता है, वो बच्चों के साथ रहता है। This is why I tell you that all the literature is the product of society, your company. The companions are very necessary. Why am I telling you all these things? मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? Because the literature of modern age is full of pessimism, full of depression, full of frustration. And there are some literatures tried well to get optimism anyhow. So, some important features of modern literature. So the age as I described it, जैसे मैंने इसको डिस्क्राइब किया,
उस एज को आप लिटरेचर में पाने का प्रयास करिए. जस्ट ट्राई टू फाइंड द एज इन लिटरेचर, बिकॉज लिटरेचर एंड सोसाइटी कैन नॉट बी सेपरेटेड. ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी सेपरेटेड. ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को सेपरेट नहीं किया जा सकता है. हां, उसके हम एक्सेंट्रिसिटी तक जा सकते हैं कि यहां तक ऑब्जेक्टिविटी, यहां तक सब्जेक्टिविटी है, लेकिन एग्जैक्ट डिमार्केशन बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल. कि हम लाइन खींच दें कि इधर ऑब्जेक्टिविटी इधर सब्जेक्टिविटी, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है. सो चलिए कोशिश करते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम पाने का प्रयास करें, कि जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो कैसी कैसी फिलॉसफी, कैसी कैसी थियरी, कैसे कैसे फीचर्स आपको उस लिटरेचर में देखने को मिलेंगे. देखिए, पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी लैक ऑफ कम्युनल फिलॉसफी. लैक ऑफ कम्युनल फिलॉसफी, सामुदायिक दर्शन की कमी आ गई. दूसरी चीज यहां देखिए, fragmentation of personality. Fragmentation of personality. Third, isolation, alienation, atomization, and mechanization. Next, innovation and innovation and experimentation. Next, nostalgia. etc. These concepts you will find in मॉडर्न लिटरेचर. ये सारी चीजें आपको मॉडर्न लिटरेचर में. एक और कॉन्सेप्ट लिख दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरे लिए चूंकि वो जरूरी हो सकता है, मैं उसे भी लिखना चाहूंगा. दो कॉन्सेप्ट लिख देता हूं. पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन.
industrialization of emotions, and dehumanization now etc. देखिए, when you will discuss all these facts, all these concepts, all these theories, all these topics, you will become capable of understanding the whole modern age and its literature. So we discuss lack of communal philosophy. Samudayik darshan, what do you understand by? If you just try it through Indian concept, इंडियन रूरल कॉन्सेप्ट से अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो कम्युनल फिलॉसफी समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके पीछे जाएंगे और समझाएंगे। पहला चीज समझाने का प्रयास करना है, लैक ऑफ कम्युनल फिलॉसफी। ये देखिए, लैक ऑफ कम्युनल फिलॉसफी, पहली चीज समझा रहे हैं। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, वंस अरिस्टोटल said, man is a social animal. क्या कहा कि मानव, आदमी खास करके एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। अब सामुदायिक दर्शन में कमी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हमारे अंदर से जो सामाजिकता थी लगभग वो समाप्त हो गई। व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इंटरैक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए लोगों का एक समूह, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए लोगों का समूह समाज कहलाता है। आज लोग एक दूसरे को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं, दूसरे तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। पहले एक दूसरे के हेल्प की लोगों को जरूरत पड़ती थी, जरा सा कुछ होता था लोग बगल में पहुंच जाते थे, हमारी हेल्प करिए। नेबर का कॉन्सेप्ट था, पड़ोसियों का कॉन्सेप्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए। शादी ब्याह पड़ता था, सारे गांव वाले, सारे अगल बगल वाले मिलके मदद करके शादी ब्याह करवा देते थे। जरूरत नहीं पड़ती थी किसी हलवाई की, किसी टेंट वाले की या किसी खाट पाट लाने की, जरूरत नहीं पड़ती थी। वाई? बिकॉज द पीपुल वर सोशल, पीपुल वर communally strong. But unfortunately, in modern age, when middle class became strong and capitalism started existing in the society in a strong way, जब पूंजीवाद आ गया, लोगों के पास कैश मनी का फ्लो हुआ, धीरे 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 सोशलिज्म, समाजवाद came to be removed from society, सोसाइटी से गायब हो गया, from the world। एंड अब आप देख लीजिए कि ये जो एक शब्द था ये हट गया। नाउ इट केम टू बी रिमूव्ड, ये हट गया। सो इन मॉडर्न एज मैन इज एनिमल। जो अरस्तु का कॉन्सेप्ट था ये हो गया है, बिकॉज सोसाइटी हैज बीन रिमूव्ड, तो मैन इज एनिमल। तो मॉडर्न एज के लिटरेचर में, स्पेशली अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न एज की, ज्यादा आपके समझ में आएगा। उस एज के लिटरेचर से अगर हम चीजों को जोड़ के देखें तो आपको आदमी जानवर की तरह दिखाई देगा। जो एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, समय के साथ वो गायब हो गई, धीरे 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 समाप्त हो गई। ठीक है? तो लैक ऑफ कम्युनल फिलॉसफी का मतलब सामुदायिक दर्शन, जो लोगों के मिलजुल कर रहने की भावना थी, जो एक समाज था, इंसान का इंसान से लगाव था, पैसे रुपए की कीमत नहीं थी, वो खत्म हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन अ मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी, आधुनिक व्यक्ति, तो डिफाइन करिए, तो व्हाट विल बी द परफेक्ट डेफिनेशन? यू नो, मॉडर्न मैन इज एन आइसोलेटेड, alienated, fragmented, atomized, mechanized man running after money। आधुनिक व्यक्ति अकेला, तन्हा, बिखरा हुआ,
अपने आप में परिपूर्ण एक यंत्र है जो पैसे के पीछे सुबह से शाम तक भाग रहा है। ये है मॉडर्न एज का व्यक्ति। तो सबसे पहले सामुदायिक दर्शन जो था वो समाप्त हो गया। जब रोमांटिक एज आप पढ़ेंगे तो उसमें पहली चीज बताई जाती है द होलनेस ऑफ विजन। उसका उल्टा इसको आप मान लीजिए, वहां सबको साथ ले चलने की भावना थी, यहां बिखरने की भावना है या टूटने की भावना है। समाज इतना तेजी से विकास किया कि जो भावनाओं का संग्रह था धीरे 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 वो समाप्त होने लगा। सो पहली चीज आपको मॉडर्न लिटरेचर में ये चीज देखने को मिलेगी, इंडिविजुअलिटी मिलेगी, ह्यूमनिज्म धीरे धीरे गायब होने लगेगा, ये मिलेगा। दूसरी जो हमारी चीज थी वो क्या थी? दूसरी माई थी फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जस्ट ट्राई टू सी फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व का बिखराव। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होती है? लोग कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, तो जो कसरत उतरत करके पहलवान टाइप का दिखे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जो ये सब निकाले रहे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जो ऐसे ऐसे करके चले हनुमान जी की तरह उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। नहीं, पर्सनैलिटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन इट वेल। व्हाई? Personality is just the combination of rationality and feasibility. Personality is just the combination of rationality and feasibility. अब देखने में कैसे लगते हैं और आपका ये सॉफ्टवेयर कैसा है? Simply it is the blending of, mixture है of software and hardware both. आप केवल शरीर से बहुत अच्छे हैं, दिन भर कसरत करके आप अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं, जिम में जाकर मजबूत बनाए हुए हैं और दिमाग खाली है, तो यू वो नॉट द मैन ऑफ पर्सनैलिटी, यू वो नॉट द पर्सन ऑफ पर्सनैलिटी। इट नीड्स रैशनैलिटी टू। इसको आपकी बुद्धि की भी जरूरत है। आप देखते होंगे जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम बहुत दुबले पतले से होते हैं, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। तो इसका मतलब क्या कह दिया जाए कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और एक आईएएस अफसर की पर्सनैलिटी खराब है? नहीं, पर्सनैलिटी सिंपली मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनैलिटी एंड फिजिबिलिटी। एंड जो पर्सनैलिटी थी यही समाप्त हो रही थी। मजेदार बात यह है कि पर्सनैलिटी समाप्त हो रही थी, बिखर रही थी। एक एक व्यक्ति के अंदर कई कई व्यक्ति बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक व्यक्ति जो आपको 2 मिनट पहले गालियां देता है, आपसे मिलते ही कहता अरे आइए, आपका ही इंतजार था, आइए 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 आइए, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, आप आए, देखकर बड़ी खुशी हुई। गलत। उसके अंदर का एक झूठा व्यक्तित्व सामने आ गया है, दूसरा व्यक्ति उसके अंदर का सामने आ गया है धोखा देने के लिए आपको। गलत। एक व्यक्ति के अंदर कई कई व्यक्ति, स्प्लिट पर्सनालिटी का हर व्यक्ति शिकार हो गया है। किसी के साथ कोई दूसरा, वही व्यक्ति किसी के साथ दूसरा बन के खड़ा है तो किसी के साथ दूसरा बन के खड़ा है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल पर्सनैलिटीज। व्यक्तित्व का विखंडन हो गया, व्यक्तित्व का बिखराव हो गया। इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी रही ही नहीं समाज में, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हर व्यक्ति। In the scholar Gypsy, Matthew Arnold once said, those were the days when wits were fresh and clear and life ran gaily as sparkling Thames. Before this strange disease of sick hurry and divided aims. वो दिन थे, थोड़ी खराबियां वहीं आ गई थी। इसके बाद मैथ्यू अर्नल्ड की एक पोएम आई, मेमोरियल वर्सेस, जिसमें उन्होंने एक लाइन बोली, डाउट, डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रैक्शंस एंड फियर्स। ये विक्टोरियन क्वालिटीज हैं। डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शंस एंड फियर्स, ये विक्टोरियन लिटरेचर की क्वालिटीज थी। एंड डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शंस एंड फियर्स केम टू बी कन्वर्टेड इनटू आइसोलेशन, एलियनेशन, फ्रेगमेंटेशन, एटमाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन इन मॉडर्न एज। ये बात ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो व्यक्ति के अंदर, जैसे इफ यू गो थ्रू द लव सॉन्ग ऑफ जेल फिर फ्रॉक, दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग बाय टी.एस. एलियट, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्तियों की बात की है। पहली लाइन मॉडर्न एज की पोएम है, 1917 में प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में आई है। बड़ी मजेदार बात उसने कही है।
लेट्स गो दिन यू एंड आई, चलो चलते हैं, पहले तुम चलो फिर मैं चलूं। ये दो लोग नहीं हैं, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। वो कहता है चलो भैया, पहले जैसे मैं अपने आप कहूं चलो प्रवीण पहले तुम चलो फिर मैं चलूं, तो एक व्यक्ति नहीं है, ये दो व्यक्ति हैं एक ही व्यक्ति के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी। और जब वही टी.एस. एलियट 1922 में द वेस्टलैंड लिखे, द वेस्टलैंड, तो उसमें जो उसका नरेटर है टैरसिस, उसको दो नहीं बल्कि सैकड़ों हिस्सों में बांट दिया। तो फ्रॉड का भीषण रूप है टैरसिस, भयानक रूप है। और टैरसिस कोई और नहीं, हम ही टैरसिस हैं, आप ही टैरसिस हैं। प्रोफ्राक कोई और नहीं, हम ही प्रोफ्राक हैं, आप ही प्रोफ्राक हैं। खूब अच्छे समझ लीजिए, दीज आर द सिनेक्डोके ऑफ ऑल। खूब अच्छे समझ लीजिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो जो मॉडर्न लिटरेचर रहा उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। देखिए, इस तीसरी चीज है आइसोलेशन, एलियनेशन, फ्रेगमेंटेशन, सॉरी एटमाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। देखिए, आज की दुनिया में हर व्यक्ति आइसोलेटेड है। ऑल द मैन, ऑल द पर्संस आर आइसोलेटेड। यहां देखिए, आइसोलेटेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोलेटेड? पृथक्कृत, वो जुड़ा है ही नहीं किसी से, सबसे अलग है। देखने में आपको जुड़ा हुआ दिखेगा लेकिन वो जुड़ा हुआ है नहीं, बिल्कुल सबसे अलग व्यक्ति है, पृथक्कृत, अकेला। और इसी का जो अगला रूप है वो है एलियनेशन। एलियनेशन ज्यादा अच्छा होगा कि इसको मैं कह दूं तन्हा। हर व्यक्ति परेशान है, तन्हा है। इसके बाद आता है एटमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हर व्यक्ति एटम बन गया है, एटम। एटम का मतलब होता है परमाणु। परमाणु की डेफिनेशन होती है वह सबसे छोटा पार्टिकल जो अभिक्रियाओं में हिस्सा लेता है, अपने आप में यह पूर्ण होता है। इंसान भी आजकल एटम हो गया है, अकेला है लेकिन अपने आप में परिपूर्ण है। उसे लगता है उसे किसी की आवश्यकता नहीं, वो इस वहम में जी रहा है, उसे लगता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, न पड़ेगी। अगर आपके चूंकि ये कैपिटलिज्म का जमाना है, अगर आपके जेब में पैसा है, एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। शादी ब्याह में कितने भी पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, सारी चीजें आपके डोर पर उपलब्ध हैं, एक कॉल पे उपलब्ध है, बट यू मस्ट हैव मनी। एटमाइजेशन, एटम हो गया है, पूर्ण है अपने आप में, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो अगली चीज आती है वो आती है मैकेनाइजेशन। यांत्रिकीकरण हो गया इंसानों का। इंसान पहले जम के सोता था, जम के जागता था, जम के खेलता था, जम के मौज मस्ती करता था, लेकिन modern age is so fast, modern is so utilitarian, modern age is so innovative, modern is so compulsive that you can't do the things that you used to do before. जो आप पहले किया करते थे वो अब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप यंत्र हैं, आपका समय फिक्स है। सुबह एक निश्चित समय है जब आपका अलार्म बजेगा और आपको उठ के भागना है। यू वॉकिंग लाइक अ मशीन, यू आर नो मोर अ ह्यूमन बीइंग। आप इंसान हैं, आप कुछ और हो गए। ये जो सारी चीजें हैं, जब आप मॉडर्न लिटरेचर पढ़ेंगे, स्पेशली द लिटरेचर ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, स्पेशली द लिटरेचर ऑफ टी.एस. एलियट, स्पेशली द लिटरेचर ऑफ जेम्स जॉइस, स्पेशली द लिटरेचर ऑफ हेनरी जेम्स, विलियम जेम्स, वर्जीनिया वुल्फ, all the literatures will be showing you all the things in their literature. Next thing comes, अगली चीज क्या आती है? सारी चीजों की मैं व्याख्या इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ जाएं कि ये सारी चीजें लिटरेचर में मिलेंगी। हर लिटरेचर में आप खोजने का प्रयास कर सकते हैं। इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, जब व्यक्ति मॉडर्न होता है, जब व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है, व्यक्ति अपने आप में सक्षम होता है, तो क्या करने की कोशिश करता है पता है? वो नई नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपके पास मर्सिडीज हो, आपकी इच्छा है कि आपके पास कोई बढ़िया कार हो, एंड फॉर्चुनेटली यू गेट दैट, आपको मिल जाती है वो। नाउ यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट, यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अनदर कार,
दूसरी कार आपको चाहिए, नई नई चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। आज से 50 साल अगर आप पीछे चले जाते हैं, इफ यू गो जस्ट 50 years बैक राइट फ्रॉम टुडे, आज से केवल आप 50 साल पीछे चले जाते हैं, यू विल फाइंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपको एक दूसरी दुनिया मिलेगी। दैट वाज नॉट एज डेवलप्ड एज वी आर टुडे। वो उतनी डेवलप नहीं थी जितनी डेवलप्ड आज हैं। लेकिन अभी भी हम विकास की पराकाष्ठा को नहीं छू पाए हैं। हमारे अनुसार हमें और विकास चाहिए, तब तक विकास चाहिए जब तक सभ्यता का अंत ना हो जाए। उतना विकास चाहिए जब तक हम इंसान से कुछ और न बन जाएं। तो एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन हर जगह चल रहा है, नई नई चीजों की खोजें होती चली जा रही हैं। नेक्स्ट थिंग कम्स नॉस्टैल्जिया। दिस इज अ वेरी फाइन कॉन्सेप्ट, नॉस्टैल्जिया। वहीं जो लिटरेचर्स हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं, वो काफी चीजों से परेशान हैं। That they are not satisfied with these experimentations, these innovations, these development, these progress. इन चीजों से वो खुश नहीं है। Because emotionally this age is not as strong as it was before. भावनात्मक रूप से समाज पूरी तरीके से ढह चुका है, भावनाएं समाप्त हो चुकी है। हमें उसी दुनिया में वापस जाने का मन करता है जिस दुनिया से हम आए हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू गो बैक इन टू द वर्ल्ड वेयर वी हैव कम फ्रॉम, जहां से हम आए हैं। हमें वही दुनिया चाहिए फिर से। इन ह्यूमन दुनिया नहीं चाहिए हमको, अमानवीय दुनिया नहीं चाहिए हमको, लिटरेचर्स कहते हैं। और जब नॉस्टैल्जिया का कंसेप्ट हम कहते हैं तो उसका केवल एक मतलब होता है, yearning for the past days. Why? Because we are not satisfied with the age present. जो वर्तमान में युग है उससे हम खुश नहीं हैं। हमें अपनी बीती दुनिया में वापस जाना है, हमें उसी दुनिया में वापस जाना है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। यह है नॉस्टैल्जिया का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि शायद हम जितना आगे निकलना चाहिए था उससे आगे निकल आए हैं, आवश्यकता से अधिक आगे निकल आए, जब हम इंसान ही नहीं रहे। आज आप देखते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाई टैब, ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग यू अवे फ्रॉम योरसेल्फ। आपको आपसे दूर लेते चली जा रही हैं, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिया मतलब सिंपली आप जब पीछे जाना चाहते हैं, जब पीछे आप जाना चाहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इमोशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इमोशंस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। Industrialization of emotions. What do you understand by industrialization? Industrialization is a concept. Industrialization is a process. Industrialization is a theory. It is such a concept where the things are purchased and sold. All the things are purchased and sold. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज खरीदी और बेची जाती है। यहां तक कि भावनाएं खरीदी और बेची जा रही हैं। आपका रोना, आपका हंसना सब खरीदा बेचा जा रहा है। भावनाओं का औद्योगिकरण हो गया, मतलब भावनाएं भी खरीदी और बेची जाने लगी मॉडर्न एज में। कैसे? भावनाएं तो स्वतः सिद्ध होती हैं, भावनाएं तो स्वच्छंद होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, किसी के चाहने से बाहर नहीं आती हैं वो। लेकिन यहां पैसों के बल पर वो भी कराया जाने लगा। तो उदाहरण देखिए, जैसे एयर होस्टेसेस होती हैं, जो हवाई जहाज में परिचालिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? वो आपसे, चाहे उनके घर में कितनी समस्या हो, बच्चे की फीस जमा है नहीं, घर में किसी की डेथ हुई है, अगर वो आपके फ्लाइट में हैं तो आपको कुछ भी देते। What can I do for you, sir? What is this? The emotions have been purchased. They are compelled to smile even after they are sad. Why? Because of the industrialization of emotions. भावनाओं का औद्योगिकरण। आज अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, ईश्वर न करे, और कोई रोने वाला नहीं है, तो किराए पर उपलब्ध हैं। आप कॉल करेंगे, किराए पर रोने वाले आ जाएंगे, रोएंगे आपके लिए, पैसा लेंगे, जिस भाषा में कहेंगे उस भाषा में रोएंगे। What
This is the industrialization of emotions, and all the literatures have tried well to show you the degradation of emotional society, human society. In almost all the literature you will find that. This is called industrialization of emotions. And the last one is dehumanization. सबको मिला देंगे तो dehumanization बन जाएगा. Dehumanization means we have gone away from our human capacity, human capability, human qualities. We have gone far from there. हम वहां से बहुत दूर चले गए हैं. अब हम ह्यूमन रहे ही नहीं. We continuously try well to make ourselves dehuman. हम अपने आप को हमेशा ये बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम दिखें कि हम इंसान नहीं है, औरों की तरह नहीं है. ईश्वर ने हमें बनाया है सबसे खूबसूरत, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कलाकार कोई नहीं है. The God is the best artist. सबसे अच्छी रचना उसने की होगी तब हम बने होंगे. उसके बाद भी हम उसमें भी परिवर्तन करना चाहते हैं और खूबसूरत होना चाहते हैं. इसका मतलब दिस इज द डिसओबीडियंस ऑफ गॉड. और आपको पता है पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने लिखा है कि जब पहली बार ईश्वर की अवज्ञा की गई तो इस दुनिया में मौत आई. तो ईश्वर के खिलाफ जाना अच्छी बात नहीं है. हम ओवरडोज ऑफ कॉस्मेटिक्स का ओवरडोज लेते हैं, क्रीम, पाउडर, ऑल दीज थिंग्स, ईश्वर के खिलाफ जाने के लिए. हम कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे लगे कि हम आपकी जैसे नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम कुछ और हैं. कुछ लोग अपने शरीर पर टैटू लगा लेंगे, कुछ लोग बाल को इस तरीके से रख लेंगे. क्यों? अगर ये सब बातें होती तो ईश्वर आपको ऐसा बना के पहले से भेजता. ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर के मस्तिष्क में नहीं था, सब कुछ था. आज हम लोग ह्यूमन ही नहीं रहे. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स of modern literature. I have not discussed today modern literature, but the concepts of modern literature that you will find in the literature of modern era, चाहे जितने भी लिटरेचर्स हुए हैं, चाहे जितने भी पोएट्स, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, स्टोरी टेलर्स जितने भी हुए हैं, all these just tried well to show all these things in their literature, in their writings. But in order to go through your facts जानने के लिए, in order to go through the writings, go through the literary writings of modern era, you have to take admission and be regular in our classes. Admission लीजिए, बहुत आसान प्रोसेस है. Call the numbers given on the board and you'll have to have the procedures. आपको एक मामूली सी फी पे करनी है और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तब तक के लिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए. वो सिलेक्शन आपका पहली बार में होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं. तो आज के लिए इतना. थैंक यू.